तो we'll be having a comprehensive, detailed coverage of subjects. And sir, ये एक स्पेशल चीज़ है जो हम सब करते हैं, but I think the industry does not do. हम हर अपनी क्लास से पहले सिलेबस और PYQs दिखाते हैं. This is my guarantee कि इन नोट्स के बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. And that is why I am saying with confidence that this is a one-stop solution. हम पूरे प्रोग्राम में more than 300 आंसर लाइव लिखने वाले हैं. I'll cover entire theory. I'll teach you applied ethics. I'll teach you answer writing. I'll provide you current affairs. Mind maps होगा, ठीक है, सब कुछ concise manner में होगा. With respect to predictions, We will brainstorm together. Then the timer will start. For 110 marker, I will give you 7 minutes. For 115 marker, I will give you 11 minutes. मैं 10 अलग अप्रोचेस कराऊंगा. पेस्टल भी कराऊंगा. पहली क्लास पेस्टल की होगी ताकि तुम ये ना कहो यार बेसिक नहीं पढ़ाया मैंने. मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा. 9 डिफरेंट अप्रोचेस कराऊंगा. Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, if you have completed your prelims foundation preparation, now you are targeting UPSC CSC 2026 attempt. So the way forward is mains examination preparation. For your mains comprehensive preparation, Sarthi IAS is launching its MMP Plus 2026 batch, a comprehensive batch targeting mains preparation in this video. सर एक्चुअली अब जैसे इस बार भी हमने देखा एंड आगे भी यही है, even in the 2026 calendar this is true, that the gap between prelims and mains is remaining hardly of 80-85 days. So for anyone who wants to give this exam seriously, they will have to prepare a substantial chunk of mains before they sit for the prelims exam. Right. And this program has been specially designed for that. So it is ultimately a mains foundation course where we teach you everything for mains, GS 1, 2, 3, 4 essay and answer writing along with practice test. So this is the one-stop solution for mains preparation for 2026. Right. So all the details we will share. Basically, we are starting this program on 1st of July. You can take a break of 1 or 2 weeks and then you can start your mains preparation from July onwards. We will complete the whole mains examination preparation by December end so that आप जनवरी से अपने prelims पे दोबारा से फोकस कर पाएं. तो जो क्लास की लैंग्वेजेस यहाँ पे रहेंगी, all the classes will be live. Class language will be English. तो हिंदी इंग्लिश अगर आप दोनों समझते हैं, you can join this program. And जो class notes हम आपको provide करने वाले हैं, that will be in English as well as in Hindi. So first, let's discuss what is so special about this MMP Plus program. Sir, Sarthi IAS stands on its 3 pillars. One is credible faculties, second is quality content, and third is affordability. Sir, before I say anything about Sarthi IAS, let's hear from the students of MMP Plus of the last few years and what their feedback has been and what the toppers have to say about this program. I was also the part of the GS3 program and the Write Smart program. That gave me a perspective of how to proceed for the mains. I had joined in fact GS3 का program भी था, 4 का भी था और Write Smart भी था. It was very helpful. I think मेरा जो भी improvement होगा, I think it will play a very important role because it really helped me analyze my answers and make improvements, small improvements की एक conclusion can be, it can have some SDG or something, but it might not be as forward looking as some other conclusion. The ethics module and purchase the ethics module of Sarthi IAS. okay. So and I studied ethics from you and it definitely helped me, and ethics is one of my favorite subjects, sir. In my journey of UPSC preparation, I have been associated with Shivin sir and Sarthi IAS. I have enrolled in Write Smart course, and then I have got an understanding about how to write mains answers, how to have templates for different set of questions, and Shivin sir's teaching was absolutely flawless. सारथी के कोई इसमें थे जुड़े हुए मेंस प्रोग्राम में? सर मैंने क्लॉज किया है. अच्छा, क्या फीडबैक देना चाहेंगे उसका? कुछ सर बढ़िया था, मतलब मेरी जो इनिशियल मेज राइटिंग थी वो वहीं से थी. Hi, my name is Rishabh Chaudhary and I have secured All India Rank 28. I enrolled in Write Smart program of Sarthi IAS conducted by Dr. Shivin Chaudhary sir. Hello everyone, my name is Utkarsh Yadav and I have secured All India Rank 32 in this year's Civil Services examination. This was my third attempt and third mains, and I have been associated with Sarthi IAS for my previous 2 attempts. In 2023, I was part of their Write Smart plus GS3 course taught by Shivin sir, and this year I was part of their MMP Plus program. I have secured All India Rank 35 in the Civil Services examination. I was part of Mudit Jain sir's ethics course, where his answer writing approaches helped me to generate different dimensions to the ethics answers, and moreover to provide with the good value additions to my ethics answers. Secondly, I was also part of Shivin sir's GS3 mains course,
His teaching style of contextual analysis of the topics mentioned in the GS3 helped me to enrich my answers by generating different perspectives and dimensions on the questions of the GS3. I was part of program of Shivin sir. It was a good session. Last year I wrote all the PYQs with Shivin sir. I was part of Write Smart course of Shivin and also GS3 course, and those two immensely helped me with respect to writing answers. MMP plus prelims बहुत सारे join किए थे मैंने. That was pretty good. Like my answer writing was like dedicatedly to the Sarthi IAS. The Write Smart initiative as well as the essay and ethics by Mujit sir. But actually, I really liked the initiative because last year I only got 120 marks for the ethics. So I believe that this time I can do well with respect to ethics. And generally in the mains also that helped me a lot, especially the dimensions and the strategy to approach generic questions. That really helped me. I was the part of the Write Smart program of Sarthi IAS, and I think that it has helped me a lot in improving the structuring of my answers. I have secured All India rank 61 in the UPSC Civil Services Examination 2024. I had enrolled in the courses Write Smart by Dr. Shivin Chaudhary as well as the Ethics and Essay course by Mudit Jain sir. I found them extremely helpful. I was associated with the laws program that Varun sir used to take for answer writing preparation. I have been a beneficiary of your means mentorship program, and I used to actively see Write Smart program. I have seen all your YouTube videos. I have also done the monthly magazines that you used to do on your channel. I was a part of Write Smart course taken by Dr. Shivin sir. I benefited immensely out of it because it just not taught me about the various answer structures, but it also taught me why answer writing is really an art. What all needs to be done to have proper structured answers in UPSC. I had enrolled in the ethics module taken by Mudit Jain sir, and that module I found quite useful in the terms of value addition and quality content enrichment for especially the GS4 ethics paper. I joined Varun sir's live answer writing program back then, and that was the first time I started writing answers. It helped me gain confidence about writing answers as a beginner and also understand the overall structure. I also joined Write Smart program of Shivin sir. I was doing GS3 with Shivin sir. It was very, the content was very rich sir. So it helped me. आपने आई एम श्योर टॉपर्स का फीडबैक सुना होगा. यहाँ पर मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा एंड वाई दिस प्रोग्राम इज सो डियर टू मी. ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे जी जो हमारी स्टूडेंट थी, शी वॉज स्टूडेंट ऑफ राइट स्मार्ट एंड GS3 in 2023. Then she came to Sadhu sir in 2024. So she had read content of mains in 2023 and she cleared the exam 2024. That means उन्होंने अपने प्री के बाद 2023 के बाद मेंस की अच्छे से प्रेप करी. Then she was able to apply those things even better in the next attempt, and then finally make it. So recently I was talking to Abhishek Sharma, who is ranked 38. He was also a student of Write Smart in 2023. उनका prelims नहीं हुआ था 23 में. फिर 24 में जब वो गए, first time उन्होंने means दिया and he got rank 38 in his first means. And that is why we say that we have quality content, and I'm sure the feedbacks that you've heard also validate that. Sir, जहाँ तक credibility की बात है, there is no doubt that we have the most credible team in the market. Combined experience of 4 selections and 17 interviews. We'll talk about the faculty and sir, of course, affordability. And all three things come together in this course of MMP Plus that we're doing for 2026. All right. So this is a wonderful point which you mentioned, that those people who prepare for the mains examination before the prelims, they have the much higher chances to crack the examination next year. So we suggest all of you, if you are continuing your UPSC CSC preparation, then mains is the way forward. Right. So sir, going forward about this program, this is the faculty that I was talking about. So 4 selections, 17 interviews, and everyone who is teaching you has at least appeared in the interview once, and we have a set of completely credible faculty. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, I will be teaching you GS3 and Write Smart. Varun sir will be teaching you laws as well as GS1 portion of society and international relations. Mudit sir will be handling ethics and essay. M. Puri sir will be handling GS2. Pallavi ma'am will be handling geography. Kabul sir will be handling history. And Sajal sir will be there as our head of mentorship in this program. So this is how
It's a comprehensive team which have collective experience of 4 selection and 17 interviews in your UPSC CSC exam. Just one more thing I'd like to add here, sir. यहाँ पर जो mentors भी हैं, this is our strict criteria. Any mentor who comes to Saarthi IAS is someone who has at least appeared in the interview once. तो अगर आप मेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आपसे वही लोग बात करेंगे जिन्होंने मेंस खुद क्लियर किया हुआ है. कोई और आपसे ऐसा बात नहीं करेगा जिसने मेंस खुद नहीं क्लियर किया हो. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस टीम दैट वी हैव हैंड रिटन फीडबैक्स फ्रॉम रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 11, ऑल ऑफ whom were our students. सर, बट अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू कवर थिंग्स हियर, कि हम कैसे इस प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. राइट. सो व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, सबसे पहले आता है कंटेंट. यू नीड टू कवर द कंटेंट इन डिटेल विच इज टारगेटिंग इंडिविजुअल टॉपिक ऑफ मेंस एग्जामिनेशन. जो आपका प्रीलिम्स का फाउंडेशनल कंटेंट है, आप उससे मेंस के अच्छे आंसर नहीं लिख सकते. सो सर, ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प. ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट बिल्कुल कहीं काम नहीं आएगा, बट मेंस कंटेंट इज डिफरेंट. मैं अभी 4-5 सब्जेक्ट के नाम लेता हूँ. इंटरनल सिक्योरिटी, और हाँ ये सब्जेक्ट होते हैं. इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, एथिक्स, एसे. नाउ इंडियन सोसाइटी, दीज आर ऑल थिंग्स जो सिर्फ मेंस में पूछी जाती हैं. Even modern history for mains is very different as compared to modern history for prelims. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि सारा कंटेंट, चाहे किसी भी टाइप का कंटेंट हो मेंस के लिए, GS 1, 2, 3, 4 एंड essay, we will be covering all of that, and all of that we will cover through live lectures in a comprehensive and detailed manner. तो ये फर्स्ट स्टेप है. अब सर, जब मैंने कंटेंट कवर कर लिया, दैट इज नॉट इनफ. सबको पता है कि हमें आंसर राइटिंग करनी है, बट सबको क्या लगता है कि मैं जाके टेस्ट लिखाऊं बस और मेरी आंसर राइटिंग हो जाएगी. नोबडी टीचेस अस आंसर राइटिंग. तो सेकंड स्टेप है वेयर वी लर्न आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग लर्न करने के लिए एक तरीका है कि मैं PYQs खुद लिखूं, दैट वी डू इन राइट स्मार्ट. एंड दूसरी चीज है लॉज. सर, व्हाई इज लॉज सो स्पेशल? So once in Write Smart you have learned about the answer writing. In Write Smart we will also tell you the different approaches for answer writing. Once you have learned all those approaches, अब आपको उसका practice करना है on new questions. In live answer writing session we will practice new questions. I will stand here in the live lecture. 5 questions live आप मेरे सामने लिखोगे. मैं टाइमर ऑन करूंगा जिससे डिसिप्लिन एनफोर्स होगा. जब आप उन आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर जो आपने राइट स्मार्ट में सीखा है, उन्हें लॉज में जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आंसर राइटिंग आपकी कंसोलिडेट हो जाएगी. दैट इज द आइडिया हियर. सो आइडिया हियर इज टू फोल्ड. पहले हम राइट स्मार्ट में PYQs को यूज करके सीखेंगे कि आंसर किन अप्रोचेस से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है. PYQs की थीम एनालिसिस करेंगे. वंस दैट इज डन, देन वील कम टू लॉज एंड प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस, कि अच्छा अब नए क्वेश्चंस में इनको कैसे लगाया जाए. और जो हमारा इनर्शिया होता है कि यार बाद में लिख लेंगे, देख लेंगे, 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, अभी कौन लिखेगा, वो प्रॉब्लम हम लॉज में सॉल्व करेंगे. उसके बाद वी विल गो ऑन टू प्रैक्टिस टेस्ट. These practice tests are with self-evaluation, but we will have access to model answers as well as test discussion videos by Sajal sir. So this is the idea कि हमने content भी पढ़ा, हमने answer writing भी करी, और फिर हमने practice test भी दिए. All 3 steps we will follow. So this is how this MMP Plus program is a one-stop solution for your mains examination preparation. Sir, ये एक important slide है कि MMP Plus is there for 2025 also and 2026 also. तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो पहले तो सर मैं कुछ 2025 एग्जाम के बारे में बताता हूँ. देखो, अगेन जो 2025 में मेंस दे रहे हैं, दे हैव वेरी लिटिल टाइम ऑन देयर हैंड्स, सो दे डोंट हैव द टाइम टू वॉच क्लासेस लाइव, राइट. तो वहां पर हमने क्या किया, दैट यू वॉच रिकॉर्डिंग ऑन योर ओन, और क्लास की रिकॉर्डिंग खुद देखनी है, कंटेंट पढ़ना है, और राइट स्मार्ट लॉज भी अटेंड करना है एक ही दिन में. बट 2026 के लिए अगर हम कर रहे हैं, वी हैव टाइम फॉर इट. हमारे पास दिसंबर तक का टाइम है, सो वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट. ऑल क्लासेस विल बी कंडक्टेड लाइव, ताकि आप क्लास में लाइव आओ. और देखो सर, क्या मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइव क्लास में आते हो और आपको पता है कि हाँ यार रोज क्लास हो रही है, तो वो डिसिप्लिन भी एनफोर्स होता है. रिकॉर्डिंग का क्या है कि हाँ देख लेंगे. अब जो बंदा मेंस दे रहा है, दे स्टिल विल हैव दिस डिसिप्लिन बाय देमसेल्व्स, बिकॉज उनके सामने पेपर है 80 दिन में. बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप 1-2 महीने तो यू हैव अ वेरी हाई एंथुजियाज्म, उसके बाद लगता है यार छोड़ दो. And that is why we have kept every class live. सारी आंसर राइटिंग की क्लासेस, सारी GS की क्लासेस, सब कुछ हमने लाइव रखा है, ताकि आप रेगुलरली शो अप करो क्लास में. ऑल्सो इन लाइव क्लासेस डाउट रिजोल्यूशन भी आपका ऑन द स्पॉट हो जाता है. ठीक है. सेकेंड सर, जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे, वी विल बी टीचिंग देम इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड मैनर. यहाँ पर सर जैसे मैं GS3 की बात करूँ, जो मैं इस साल के मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, आई एम डूइंग इट इन अ सीरीज ऑफ 20 लेक्चर्स,
एंड दैट टू वेरी कंसाइज क्रिस्प, ताकि हाँ जो इस साल मेंस में लाइकली है वो पढ़ा जाए। बट यहाँ पर आई बी गोइंग इनटू डेप्थ, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम अगर जो आज पढ़ रहे हैं वो हमें अगले साल तक याद रखना है। जो मेंस दे रहा है उसे उस 2 महीने के लिए याद रखना है, आपको इसे नेक्स्ट ईयर तक याद रखना है। तो विल बी हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कवरेज ऑफ सब्जेक्ट्स। एंड सर ये एक स्पेशल चीज़ है जो हम सब करते हैं, बट आई थिंक द इंडस्ट्री डज नॉट डू। हम हर अपनी क्लास से पहले सिलेबस और PYQs दिखाते हैं, ताकि आप हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक कर सको कि हमने सब टॉपिक्स कवर किए हैं या नहीं। अगर मैं ही आपको सिलेबस नहीं दिखाऊंगा तो मेरे लिए बहुत आसान है कुछ भी स्किप करना, बट इफ आई एम शोइंग यू द सिलेबस एंड आई एम शोइंग यू द PYQs, देन माय अकाउंटेबिलिटी इज सेट दैट एवरी सिंगल मेंस टॉपिक, अगर वहां पर इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग लिखा है GS3 के सिलेबस में, तो आपको उसके नोट्स होने चाहिए आपके पास। सो फंडामेंटली देखिए, टाइम आपके पास ज्यादा है। अगर आप मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव 6 मंथ्स फॉर दैट। तो क्लासेस भी अकॉर्डिंगली सब लाइव है और डिटेल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, फेज शेड्यूल फॉर कंटेंट एब्जॉर्प्शन। देखिए आपके पास अगेन 6 मंथ्स हैं, तो हमने आपको अभी हम डिटेल शेड्यूल भी दिखाएंगे। द वे वी हैव प्लान्ड योर क्लासेस इज, सबसे पहले आप क्लासेस को लाइव अटेंड कीजिए जहां पे आप कंटेंट लर्न करेंगे। जब आप पहली बार कंटेंट देखते हैं तो एक अवेयरनेस डेवलप होती है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, बट कंटेंट इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। जब आपकी कंटेंट की क्लासेस ओवर हो जाएंगी, लेट्स से आपने एथिक्स की क्लासेस करी, उसके बाद आफ्टर अ वीक वी विल बी हैविंग राइट स्मार्ट एंड लॉस, जहां पे कि आप दोबारा से उस कंटेंट को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करके जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, देन यू विल प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन राइट स्मार्ट एंड लॉस। तो क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है, तो हमने एक फेज्ड मैनर में, ताकि आप कंटेंट बेटर एब्जॉर्ब कर पाओ, फेज मैनर में हमने कंटेंट और राइट स्मार्ट और लॉस को रखा है। किसी भी दिन आपकी एक से ज्यादा क्लास हमने नहीं रखी है। दैट इज द आइडिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं एक एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे आपने GS4 की पहले क्लासेस देखी, आपने GS4 पूरा पढ़ लिया मुदत सर के साथ, उसके बाद आप आओ और इसका राइट स्मार्ट और लॉस करो, एंड एक दिन में एक ही क्लास है, तो लेट्स से 3 वीक्स फॉर दिस एंड 2 वीक्स फॉर दिस। उसके बाद हम जाएंगे GS2 पढ़ने एमपुरी सर से, फिर इसका राइट स्मार्ट और लॉस करेंगे। सो अगेन लेट्स से 3 वीक्स फॉर दिस, 2 वीक्स फॉर राइट स्मार्ट एंड लॉस। तो मेरे पास 5 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते जिसमें मैं कंटेंट पढ़ूंगा, 2 हफ्ते जिसमें मैं आंसर राइटिंग करूंगा और रिवीजन भी करूंगा, राइट। सो इन 5 वीक्स नाउ आई विल कवर GS4 आराम से, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे GS4 तो मेरा सेट मिले। सेम फॉर GS2, सेम फॉर GS3, सेम फॉर SA, सेम फॉर GS1, राइट। सो आइडिया इज प्रीटी सिंपल कि आपको जो कंटेंट है वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रखना है, तो कंटेंट अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो एक रिवीजन की लेयर भी हमने ऐड कर दी है, ताकि आप रिवाइज भी कर लें, एक बार पढ़ भी लें, रिवाइज भी कर लें, आंसर राइटिंग भी कर लें, ताकि कंटेंट को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप रिटेन कर पाए। ऑलराइट, तो सर अब ये एक शेड्यूल है जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉड आइडिया ऑफ हाउ वील रन थिंग्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से, दिस विल बी आवर ओरिएंटेशन। यहाँ पर देयर इज सम टाइम फॉर यू हियर। ये टाइम क्यों रखा गया है? ताकि आप मेंस की चीजें अब्सॉर्ब कर सकें, यू गेट इनटू द मेंस मोड। ऐसा नहीं है कि आए पहले दिन क्लास देखने लग गए। दिस टाइम हैज बीन सेट फॉर ओरिएंटेशन, देयर विल बी सम होमवर्क गिवन टू यू हियर। जब वो आप कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद एथिक्स फर्स्ट। एथिक्स की क्लासेस हम करेंगे, सारी क्लासेस लाइव हैं। सो लेट्स से वी आर डूइंग आवर एथिक्स क्लासेस विल बी डन बाय 29 जुलाई। अब यहाँ तक मैंने अपनी एथिक्स की क्लासेस कर ली, अब मैं एथिक्स का राइट स्मार्ट और लॉस करूंगा, राइट। एंड देन वंस आई एम डन विद राइट स्मार्ट एंड लॉस ऑफ एथिक्स, लेट्स से बाय 9th अगस्त, देन आई मूव ऑन टू GS2। तो ये मेरा शेड्यूल है। फिर GS2 के मैं क्लासेस करूंगा, फिर मैं GS2 के राइट स्मार्ट और लॉस करूंगा, फिर मैं GS3 के क्लासेस करूंगा, फिर मैं GS3 के राइट स्मार्ट और लॉस करूंगा। दिस इज द आइडिया कि एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने उसके राइट स्मार्ट और लॉस किए, तो मेरे पास रिविजन और अब्जॉर्प्शन दोनों का टाइम है। Right. अब इसमें भी हमने इस चीज का ध्यान रखा है दैट आफ्टर नवंबर यू वुड वांट टू शिफ्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आपका थोड़ा मन होगा और उस टाइम पे थोड़ा डर भी हमें लगने लगता है, हम मेंस पे उतनी फोकस नहीं कर पाते। तो हमने 30th नवंबर तक GS4, GS2, GS3 एंड SA पूरा खत्म करना है टिल 30th नवंबर। जो एक चीज रहेगी जो हम दिसंबर में करेंगे, दैट विल बी GS1। एंड GS1 जान के एंड में रखा गया है बिकॉज इट हैज मोस्ट ऑफ द सिंक विद द प्रीलिम सिलेबस। तो जैसे हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमन ज्योग्राफी, हमें वहां भी पढ़ना होता है, तो वो सब्जेक्ट्स हमने एंड में रखे हैं, Right. जहां आपके लिए ट्रांजिशन बैक टू प्रीलिम्स आसान रहे। दैट इज द आइडिया, राइट। सो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सोसाइटी सेक्शन व्हिच इज पेक्यूलियर टू द मेंस एग्जामिनेशन GS पेपर 1। तो सोसाइटी हम कंप्लीट कर लेंगे बाय 13 दिसंबर। इसके बाद आप अपने प्रीलिम्स मोड स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन भी हमने इंश्योर किया है कि मेंस की प्रिपरेशन से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आप ट्रांजिशन कर पाए। एंड वी हैव आल्सो अज्यूम्ड कि आप दिन में एक क्लास देखेंगे तो आप अपना हाफ ऑफ द डे हमें देंगे, बाकी हाफ आपके पास है अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए। राइट, ऑलराइट। सो नाउ यू हैव सीन द शेड्यूल। अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन फैकल्टी आपको सपोर्ट करने वाली है। सबसे पहले GS3। फॉर GS3 यू नो Dr. Shivin will be teaching you the complete GS3. So how we are going to approach GS3 here? सर GS3 अप्रोच करने के लिए हम पहले तो समझते हैं कि इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, राइट। देयर इज इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी। दीज आर 6 डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स। हम इन सब सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉट इवन अ सिंगल सिलेबस पॉइंट और PYQ विल बी मिस्ड, एंड दिस इज माई गारंटी कि इन नोट्स के बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। वैल्यू एडिशन, केस स्टडीज, कोट्स, एग्जाम्पल्स, टाइमलाइंस, whatever possibly you could need, that you would need to write in the mains exam is here. And sir, I'm saying this on the basis of a proven track record. Last year, from these notes that I had prepared for 2024, there were 17 out of 20 questions in the GS3 paper, and we will emulate that. एक चीज और जो लोगों की कंफ्यूजन रहती है सर, वो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। एक तो वी हैव हैंड रिटन नोट्स फॉर क्विक रिविजन, जो आप अपने मेन से पहले यूज करेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिटेल में, रिविजन के लिए हैंड रिटन नोट्स रखेंगे, राइट। दोज नोट्स विल बी 300 पेजेस फॉर द एंटायर GS3। दूसरी चीज, GS3 काफी करंट अफेयर्स बेस्ड है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस में अपियर हो रहे होंगे, जो भी करंट अफेयर्स अपडेशन होगा, दैट आई विल प्रोवाइड टू यू इन दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग एल्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग विद कॉन्फिडेंस दैट दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। राइट, तो करंट अफेयर अपडेशन आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी मेंस के लिए रेलेवेंट होगा। सो दैट इज अबाउट GS3। नाउ लेट्स चेक आउट GS2। सो फॉर GS2 दिस ईयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग लेजेंड ऑफ पॉलिटी टू यू, एमपुरी सर। एमपुरी सर से मैंने भी अपने टाइम में प्रिपरेशन की है, एंड आई एम श्योर यू आल्सो मस्ट। सर, आई हैव रेफर्ड टू हिज नोट्स, यस। यस, so let's hear out from Empuri sir that how he is going to cover the complete GS2 for you. Hi students, I'm Empuri and I'll be teaching GS paper 2 in the MMP Plus program on Sarthi platform. Well, I've been teaching for the last 25 years now. This is in fact my 26th year running, and I've helped hundreds of students achieve success, even high ranks in this particular examination. It's the premier examination of the country, as indeed you know, right? My live sessions with respect to GS paper 2 on the platform will commence from the month of August. And please keep in mind that the focus of my classes would be on detailed conceptual understanding and not merely just reading of PPTs and providing you with summarized version of my notes, etc. So it will go way beyond that, right? Another thing that you must, I believe that most of you should be able to appreciate by now, that if you look at the questions, the nature of the questions which are appearing in GS paper 2, and especially not just the prelims, but the mains in particular, which is the real examination, you would see that the contemporary sources which are available in the market in terms of the standard textbooks, वो तो बेटा sufficient नहीं है। पता ही लग जाता है देख के कि they are not sufficient. They are not sufficient for even prelims. What to talk of the mains part, right? And that is where, of course, my live sessions will be of great help to you people, right? Another thing is that we'll help you build your GS paper 2 with real world knowledge, with real world examples, with the understanding of an integration of contemporary developments and current issues, and also help you in developing the right kind of answer writing protocols that actually work in the examination, right? In a nutshell, I would say the goal is very simple, right? That is, well, understand deeply, write effectively, and score high marks in GS paper 2. So, see you in MMP Plus program in the month of August. Thank you. So, this is about GS2. Now, let's move on to the next paper, GS4. For GS4, we have Mudit Jain sir with us. Hello, sir. Hello. Sir, तो ethics हम कैसे cover करने वाले हैं, especially in context of 2026 examination, क्योंकि एक long duration है और जो content है वो relevant रहना चाहिए 2026 के लिए भी. How we are going to cover ethics here? My module is always based around predictions कि क्या आ सकता है, क्या पूछ सकता है, what is going around in society, so that it can be asked in ethics paper, and we will do that with you guys as well. मैं slow speed में पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर दिन क्लास होगी, बट डिटेल में क्लास होगी. तो अगर किसी को लग रहा है कि स्क्रैच से नहीं होगा, सो आपकी प्रॉब्लम, टेंशन और ये डाउट मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एथिक्स पेपर, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आंसर राइटिंग. सिर्फ एथिक्स पढ़ेंगे नहीं, हम एथिक्स को यूज करना समझेंगे. दैट वट एवर रैंडम क्वेश्चंस यूपीएससी जो आजकल पूछने लगा है 4-4, 5-5 लाइन के,
So how to use theory in those answers, my entire focus will be on that. Plus मैंने जैसे बोला prediction पे based होता है. So for 2026 जो मेरी predictions होगी, as Dr. Shivin has also stated कि वो current affairs आपको provide करेंगे. I'll provide you notes and predictions for 2026 as well. जब वो समय आएगा मैं provide करूँगा. There is no need to join any new course for that. Right. And sir, what about the examples? जो न्यू एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे हम इस कोर्स को वाइंड अप करेंगे दिसंबर में, उसके बाद भी कुछ न्यू एग्जाम्पल्स आते हैं जो एथिक्स में यूज करने चाहिए. राइट नाउ द मॉड्यूल इज ऑफ अबाउट 280 पेजेस इंक्लूडिंग 27 पेजेस अप्लाइड एथिक्स, सॉल्व्ड आंसर, माइंड मैप्स. तो जो रीडेबल कंटेंट है वो 200 पेज का तो बल्कि नहीं है, प्लस उसमें 700 एग्जाम्पल है. तो जो एकदम करंट के एग्जाम्पल होंगे वो भी आपको प्रिडिक्शंस के साथ आई विल प्रोवाइड यू. सो नथिंग टू वरी अबाउट कि कुछ मिस हो जाएगा, अभी लूं या बाद में लूं. देखो एथिक्स स्टैटिक है ओवरऑल, मुझे करंट अफेयर को यूज करना होता है. तो मैं हमेशा से यही सजेस्ट करता हूँ कि प्री से पहले मेरा स्टैटिक पेपर जो है एथिक्स का वो हो जाना चाहिए, ताकि प्री जैसी मेरा क्लियर हो या प्री मैंने जैसी दे दिया मैं सीधा टेस्ट सीरीज पे आऊँ. उसके बाद मुझे एथिक्स उस समय पढ़ना ना पड़े. आई ऑलरेडी हैव माय नोट्स, आई ऑलरेडी नो हाउ टू अप्लाई द आंसर्स. राइट, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एथिक्स. हाउ अबाउट द एसे? तो एसे में हम क्या अप्रोच रखने वाले हैं इस बैच में? एसे बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, इन द सेंस के इसमें अपडेशन की जरूरत नहीं है एज सच कि आपको नेक्स्ट ईयर भी करंट अफेयर कुछ चाहिए, इसमें वो नहीं है. दैट इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज कि आपको व्हाट टू राइट. मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट. मेन प्रॉब्लम जो है कि एसे का स्कोर डाउन जा रहा है क्योंकि सब पेस्टल में लिखते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल एक्सेट्रा. मैं 10 अलग अप्रोचेस कराऊंगा. पेस्टल भी कराऊंगा, पहली क्लास पेस्टल की होगी, ताकि तुम ये ना कहो यार बेसिक नहीं पढ़ाया मैंने. मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा, 9 डिफरेंट अप्रोचेस कराऊंगा. हम साथ में लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. मैंने एक अप्रोच सिखाई, मैंने किसी PYQ पे लिख के दिखाया तुम्हें कि देखो ऐसे लिखना है इस पे, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा अब तुम लिखो, राइट इन 40 वर्ड्स या राइट इन 60 वर्ड्स. लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सो दैट व्हेन यू आर इन दैट एग्जाम हॉल यू विल बी अलोन, आई वोंट बी देयर विद यू. तब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको हेल्प करेगी कि रैंडम टॉपिक मैंने देखा, मैं किसी भी अप्रोच में फिर उसे लगा सकता हूँ. ठीक है. सो वी विल वर्क ऑन फ्लो, वी विल वर्क ऑन इंटरकनेक्शंस, वी विल वर्क ऑन हाउ टू यूज GS नॉलेज एग्जाम्पल, इवन ऑप्शनल नॉलेज कैसे यूज करनी है. पूरा वैल्यू एडेड मटेरियल इस एक कोर्स में इंक्लूडेड है. एंड ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग विल हैपन इन द लाइव सेशन. बिल्कुल. राइट. सो नाउ फॉर द GS1, these are the 3 faculties who will support you in GS1. Pallavi ma'am will be covering geography section. In geography we will emphasize on the human geography part. देखिए physical geography you have covered at the prelim stage as well, and GS1 में UPSC human geography से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उस पार्ट पे एक स्पेशल एम्फेसिस रखा जाएगा. फॉर हिस्ट्री सेक्शन इंक्लूडिंग योर वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट कंसोलिडेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, कंवल सर विल गाइड यू वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वी विल हैव डिटेल लेक्चर फॉर दैट एज वेल. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा. फॉर द सोसाइटी सेक्शन आई विल बी हेल्पिंग यू इन दिस बैच. सोसाइटी अगेन जितने भी टॉपिक्स हैं, देयर आर 9 टॉपिक्स ऑफ सोसाइटी. बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है GS1 में सोसाइटी. स्टैटिक प्लस जो अप्लाइड पार्ट है, जो डायनेमिक क्वेश्चन सोसाइटी सेक्शन से UPSC पूछ रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कवरेज दूंगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग. तो ये तो हुआ कंटेंट के लिए. इसके बाद आंसर राइटिंग आती है. फॉर द आंसर राइटिंग फर्स्ट राइट स्मार्ट की बात करते हैं. फॉर द राइट स्मार्ट वी हैव विद अस डॉक्टर शिविन. हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक. सो हाउ वी आर गोइंग टू टीच आंसर राइटिंग टू ऑल द स्टूडेंट इन दिस बैच? सर आंसर राइटिंग में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है थिंकिंग. यू लुक एट द क्वेश्चन, देर आर 2 टास्क दैट यू नीड टू डू. 1 इज ब्रेकिंग द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स, एंड सेकंड सोचना कि मैं इसमें लिखूंगा क्या. आपके पास कंटेंट है तो आपको पता है कि हाँ यार आई हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बट क्वेश्चन टेलर्ड स्पेसिफिक पॉइंट्स जो डिमांड एड्रेस कर रहे हो, दैट इज द सेकंड थिंग. अब उसके लिए सर वी हैव डेवलप्ड अबाउट 15 अप्रोचेस that help us think fast. अब इन अप्रोचेस को हमें सीखना है और PYQs के थ्रू हम सीखेंगे, बिकॉज दीज आर UPSC's क्वेश्चंस. इससे टफ क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है जो UPSC ने खुद बना लिए. उन्हीं क्वेश्चंस को हम यूज करेंगे, वहीं पे अप्रोचेस सीखेंगे, उनसे एनालाइज करके थीम्स अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये चीज़ें जो हैं ये बार बार रिपीट होती हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेट पैटर्न है मेरे दिमाग में. जैसे द मोमेंट आई हियर द वर्ड क्लाइमेट, देयर इज अ 10 निमोनिक थिंग दैट आई रिमेंबर कि ये 10 पॉइंट हैं. क्लाइमेट पे इम्पैक्ट अगर पूछा, मुझे वो 10 कीवर्ड याद आए और अब मैंने उसमें अपने एग्जाम्पल्स और कंटेंट को यूज कर लिया. सो राइट स्मार्ट शुड आइडली बी कॉल्ड थिंक स्मार्ट. बेसिकली हम सोचना सीख रहे हैं
ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2025। जो इस साल के मेंस के भी क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद जब मेंस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सितंबर में पेपर, तो उसके बाद जो राइट स्मार्ट के सेशंस होंगे, आई विल इवन इनकॉर्पोरेट दिस ईयर्स क्वेश्चंस एंड वी विल टेक देम एज अ टेस्ट कि हमने जो सीखा क्या हम वो एक्चुअली इस साल के मेंस में अप्लाई कर पा रहे हैं। हियर सर आई विल बी कवरिंग GS 1, 2 and 3. I not only cover the PYQs, I'll also give you value addition, relevant current affairs, quotes, keywords, examples and diagrams that you can make in the paper. This is the addition I have made to WriteSmart this year कि आपका marks भी वो boost कर दे. So this is the idea, and GS4 and essay will be covered by Mudit sir. So all the classes are being taught by people who have cleared this exam in WriteSmart. And I would say कि along with ThinkSmart, WriteSmart is right now synonymous to answer writing in UPSC. You must have seen the feedback of lot of toppers. तो अगर आपको आंसर राइटिंग सीखनी है, थिंकिंग सीखनी है, then WriteSmart already MMP Plus में included है. Right. So after you have learned answer writing, thinking अगर आपने सीख लिया है, then you need to practice those structure in new questions, right? For that we will be having live answer writing session, and all the live answer writing session I will help you. Session में क्या करेंगे, मैं एक सेशन का ट्रेलर आपको दे देता हूँ. There will be 5 question, 1 question will come on screen. मैं आपको हेड्स अप दूंगा कि कौन सी राइट स्मार्ट की अप्रोच आप इस आंसर में यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. वी विल ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर, देन द टाइमर विल स्टार्ट. फॉर 1 10 मार्कर आई विल गिव यू 7 मिनट, फॉर 1 15 मार्कर आई विल गिव यू 11 मिनट. सो वी विल प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन इन अ सेम मैनर बैक टू बैक. आफ्टर दैट वी विल हैव डिस्कशंस ऑन ऑल द 5 आंसर. ठीक है, तो इसी तरह हम पूरे प्रोग्राम में मोर देन 300 आंसर लाइव लिखने वाले हैं. ठीक है, जब इतने आंसर आप लाइव लिख लोगे उसके बाद यू कैन इजीली प्रैक्टिस द टेस्ट. इनर्शिया भी खत्म हो गया, आंसर राइटिंग भी बिल्ट हो गया. सो आफ्टर आंसर राइटिंग द लास्ट स्टेप हियर इज मेंटोरशिप. सो व्हाइल यू विल बी कवरिंग ऑल द कंटेंट, लर्निंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इस पूरे एग्जामिनेशन में यू नीड सम गाइडेंस, सम सपोर्ट. फॉर दैट वी हैव कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट विद इन दिस MMP Plus program. I'll inform you beforehand that we will be having group mentorship session within this MMP Plus program. For that we have Sajal sir with us. Hello sir. Sir, how we are going to guide student for the mains examination preparation in the group mentorship within MMP Plus program? So mentorship जो यहाँ रहेगी वो एक्चुअली ग्रुप रहेगी, और इसमें हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स रहेंगे 20-25 लोगों के, और इसमें जो भी एस्पिरेंट्स को क्लासेस में दिक्कत हो रही है तो वो मेंटर के साथ दे कैन डिस्कस देयर इश्यूज, प्लस मेंटर भी, क्योंकि वो सारे मेंटर्स इंटरव्यू गिवन रहेंगे और वो भी एग्जैक्टली अप्लाई करना सिखाएंगे कि जो वो चीज सीख रहे हैं क्लासेस में उसको अप्लाई कैसे करना है मेंस एग्जामिनेशन में. तो उसके ऊपर GS1, GS2, GS3, GS4 सबके ऊपर होंगे सेशंस, नोट टेकिंग पे होंगे सेशंस. तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन पे सेशंस होंगे इसमें. राइट. एंड इवन समटाइम्स कुछ नॉन एकेडमिक डाउट्स आते हैं स्टूडेंट को, समटाइम्स कुछ बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, तो यू विल बी गेटिंग मेंटरशिप सपोर्ट फॉर दैट एज वेल. नाउ दीज आर द सैंपल नोट्स व्हिच यू विल बी गेटिंग इन दिस प्रोग्राम, है ना. तो देखिए सब टेबल माइंड मैप की फॉर्मेट में है, यू कैन क्विकली रिवाइज इट लेटर ऑन. सो इफ वी चेक आउट द प्राइस ऑफ दिस कोर्स, देखिए वी आर फॉलोइंग आवर मिशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी. ये जितने भी मॉड्यूल्स, जितने भी कंपोनेंट आपको MMP Plus प्रोग्राम में मिल रहे हैं, you can individually buy them as well at this price 2750 plus taxes. And combining all these individual component, the price could have been 19,250, but we are offering this program to you at this price 10,999 plus taxes. And इसके साथ एक और important information मैं आपको देना चाहूंगा. There were few individuals जिन्होंने सारथी IAS का MMP Plus 2025 program ज्वाइन किया था, but you might have missed the prelims cutoff this time. Then you want to migrate to the MMP Plus 2026 batch. We are offering you this migration without any extra cost. उस migration को एक्टिव कराने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है. उस एक्सेल शीट को ओपन करें, गूगल फॉर्म को ओपन करें, एंड वहां पे आप अपनी डिटेल सेंड कर दें, एंड यू विल बी माइग्रेटेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर बैच, है ना. इसकी जो लास्ट डेट है माइग्रेशन की रिक्वेस्ट के लिए, दैट इज 30th of June. बिफोर द बैच स्टार्ट, 1 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले you need to send us the request that you want migration from 2025 to 2026 batch. Link नीचे description box में है. If you have any more questions, any doubt, you can call us on this number, or you can write us a mail at ask@sarthi.com. Links are in description box. Thank you very much. All the best. See you next time.